Assalamu alaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 10th, subject Pakistan Studies, chapter number 3, Economic Development. We are going to discuss two topics today: mineral resources and the importance of agriculture in the economy, part 2. And I'm your teacher Nargis Sardar. Students, open your book at page number 72. Students, today our topic is mineral resources या मादनी वसाइल. First of all, hold your pencils in your hands and underline the difficult words and write their meanings. Raw materials, खाम माल. Existence, मौजूदगी. Availability, फराहमी. Extraction, निकालना. Require, ज़रूरी या ज़रूरत. टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी महारत. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की पजीर ममालिक. मल्टीनेशनल कंपनीज, बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ. नेचुरल गैस, कुदरती गैस. क्रूड ऑयल, मादनी तेल. चाइना क्ले, चाइना मट्टी या चीनी मट्टी. Students, before going to start our topic, let me discuss about minerals. Students, mineral is naturally occurring substance. It is usually formed underground or beneath water body. Its simple examples are sand, salt, coal, marble, iron and aluminium, etc. Students, minerals या मादनियात कुदरती तौर पर पाए जाने वाली अशिया हैं जो आम तौर पर ज़ेरी ज़मीन या पानी के नीचे पाई जाती हैं. मसलन रेत, नमक, संगमरमर, लोहा और एल्यूमिनियम वगैरह. यानी मादनियात कुदरती तौर पर पाई जाने वाली वो अशिया हैं जो ज़ेरी ज़मीन या पानी के नीचे पाई जाती हैं. Raw materials play an important role in a country's industrial development. The existence and availability of mineral resources is the key to a strong economy. Students, as we have discussed in our first topic, industrial development या किसी मुल्क की सनती तरक्की, तो किसी मुल्क की सनती तरक्की में खाम माल अहम किरदार अदा करती हैं. यानी किसी मुल्क के जितनी ज़्यादा मादनी वसाइल या मिनरल रिसोर्सेज होंगी या मिनरल रिसोर्सेज या ज़खायर होंगे, उस मुल्क की मईशत उतनी ही मुस्तहकम होगी. Extraction of these mineral resources require great technical skill, which is often very rare locally in developing countries having poor technologies. Thus, for exploiting their mineral riches, these underdeveloped countries often rely on the services of multinational companies. Students, as we have discussed before that minerals या मादनियात ज़ेर ज़मीन पाई जाने वाली अशिया हैं, तो तकनीकी महारत के बग़ैर इन मादनियात को या मिनरल रिसोर्सेज को नहीं निकाला जा सकता. चूँकि तरक्की पजीर ममालिक के पास ये तकनीकी महारत ना होने की वजह से इन ममालिक को मादनियात निकालने के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनियों की मदद लेना पड़ती है. Pakistan is endowed with many mineral resources including crude oil, natural gas, coal, iron, chromite, copper, carbonate, marble, gypsum, sulfur, china clay and salt. They are discussed as follows. Students, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी मादनी वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेज से नवाजा है, जिनमें मादनी तेल, कुदरती गैस, कोयला, लोहा, क्रोमाइट, तांबा, कार्बोनेट, संगमरमर, जिप्सम, सल्फर, चाइना मट्टी या चीनी मट्टी और नमक वगैरह शामिल हैं. Let's discuss these mineral resources one by one. First of all, crude oil. Crude oil या मादनी तेल. Crude oil, also known as petroleum, is one of the world's most important source of energy. Students, क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम भी कहा जाता है. ये दुनिया में तवानाई का एक अहम ज़रिया है. Most of the transport on land, in sea or air all over the world
Students, let's come to page number 73. Students, it is the continuation of the last line of page number 72. दुनिया में ज़्यादातर ज़मीनी आमदोरफ्त, बहरी और हवाई जहाज़, मोटर गाड़ियाँ तेल से ही चलती हैं. Now underline the difficult words and write their meanings. Vehicles, मोटर गाड़ियाँ. Refine, साफ करना. With the passage of time, वक्त गुजरने के साथ. डिमांड, मांग या मुतालबा. कॉन्स्टेंटली, मुसलसल. एक्सपेंशन, वसी या बढ़ना. ट्रांसपोर्टेशन, आमदोरफ्त. World is carried out by vehicles fueled by petroleum refined from crude oil. Its importance in increasing with the passage of time because its demand is constantly growing due to industrialization and the expansion of transportation. Students, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि दुनिया में ज़्यादातर ज़मीनी, बहरी और हवाई आमदोरफ्त जो है वो तेल से या पेट्रोलियम से होती है, तो ये तेल मादनी तेल को साफ़ करके निकाला जाता है. स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ तेल की अहमियत बढ़ती जा रही है, यानी दिन ब दिन तेल की मांग बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन में वसअत होने की वजह से तेल की मांग भी बढ़ रही है, यानी इसकी ज़रूरत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है. स्टूडेंट्स, write the difficult words or meanings. Production, पैदावार. Import, दरामद. यानी जो अशिया बाहर से पाकिस्तान मंगवाई जाती हैं उन्हें इम्पोर्ट या दरामद कहा जाता है. स्पेंडिंग, खर्च करना. वास्ट, वसी. फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला. डेफिसिट, कमी. स्टूडेंट्स, तेल तलाश करने और निकालने के लिए भारी सरमायाकारी की ज़रूरत होती है, यानी तेल निकालने और तलाश करने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा या कसी रकम का खर्च करनी पड़ती है. चूँकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 10% तेल पैदा कर रहा है और बाकी 90% की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेल दरामद करता है, यानी पाकिस्तान तेल बैरूनी मुमालिक से मंगवाता है, जिस पर कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है. स्टूडेंट्स, क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान आर फाउंड इन कोट सारंग, तूत, मियाल, खोड़, ढलियाँ डिस्ट्रिक्ट अटक, ढोडक डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान, करसाल डिस्ट्रिक्ट जहलम, डिस्ट्रिक्ट बदीन एंड आदि काजियान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी. Important reserves are also found in southern Sindh. स्टूडेंट्स, अब हम पाकिस्तान में उन मकामात को डिस्कस करेंगे जहाँ पर मादनी तेल पाया जाता है. पाकिस्तान में मादनी तेल कोट सारंग, तूत, मियाल, खोड़, डलियाँ, ज़िला अटक, ढोडक, ज़िला डेरा गाजी खान, करसाल, ज़िला जहलम, ज़िला बदीन और आदि काजियान, ज़िला रावलपिंडी में पाया जाता है. सूबा सिंध के जुनूबी हिस्सों में भी तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, आवर सेकंड नेचुरल रिसोर्स इज़ नेचुरल गैस, कुदरती गैस. होल्ड योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट डाउन देयर मीनिंग्स. डोमेस्टिक यूज़, घरेलू इस्तेमाल. फर्टिलाइज़र, खाद. थर्मल पावर हाउसेस, थर्मल बिजली घर. स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस इज एन अदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. Besides domestic use, it is used in cars, fertilizer factories, cement factories and thermal power houses. 29% of natural gas is used in fertilizers factories and 24% in other factories. स्टूडेंट्स, कुदरती गैस भी मिनरल रिसोर्सेज का में से एक है. कुदरती गैस भी एनर्जी का एक अहम ज़रिया है. घरेलू इस्तेमाल के अलावा ये गाड़ियों के चलाने, खाद बनाने वाले कारखानों, सीमेंट के कारखानों और थर्मल बिजलीघरों के चलाने में भी इस्तेमाल होती है.
स्टूडेंट्स, कुदरती गैस का 29% हिस्सा खाद बनाने के कारखानों और 24% दूसरे सनती कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। रिजर्व्स ज़खायर। Student, natural gas reserves in Pakistan are found at Sui in Balochistan, at Khairpur, Sari, Hundi, Mazrani, Kankot and Sarang in Sindh, at Dhodak, Pirko, Dhalia and Mial in Punjab and at Gurguri near Karak in the Khyber Pakhtunkhwa. स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस कि पाकिस्तान में कुदरती गैस या नेचुरल गैस के ज़खायर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर बलोचिस्तान में सुई, सूबा सिंध में खैरपुर, सारी, हुंडी, मजरानी, कंदकोट और सारंग के मकामात में पाए जाते हैं, जबकि पंजाब में ढोडक, पीरको, ढलिया, मियाल और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में गुरगुरी के मकाम पर गैस के ज़खायर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द थर्ड फॉर्म ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, दैट इज़ कोल या कोयला। Coal continues to be an important mineral resource. Before the availability means farahmi. Before the availability of oil and gas, coal was used to run factories and railway engines. Students, कोयला अहम मादियात में से एक है। तेल और गैस के आम होने से पहले कारखाने और रेलवे इंजन कोयले से ही चलते थे। In Pakistan, its mines are found at Mach, Khost, Harnai, Sinjidi, Pir Ismail, Ziyarat, Sor Range, Digari, Balochistan, Lakhda, Dadu, Makharwal, Mianli, Jimpur, Thatta and Tharparkar. The world's largest coal reserves have been discovered at Thar in Sindh, but it has not yet been properly exploited. स्टूडेंट, पाकिस्तान में कोयला मुख्तलिफ मकामात या मुख्तलिफ जगहों से निकाला जाता है, जिसमें मच, खोस्त, संजीदी, पीर इस्माइल, ज़ियारत बलोचिस्तान, सारक्षार, डिगारी, लाखड़ा, दादू, मक्कड़वाल, मियावाली, जम्पर, ठट्टा और थरपारकर के इलाके शामिल हैं। स्टूडेंट्स, दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा थर सूबा सिंध में दरियाफ्त हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ से कोयला नहीं निकाला जा सका। एक्सप्लॉइटेड निकालना। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू पेज नंबर 74। स्टूडेंट्स, द फोर्थ फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज क्रूड आयरन या खाम लोहा। सॉरी, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। लो ग्रेड मामूली किस्म, डिस्कवर्ड दरियाफ्त। हाई ग्रेड आला किस्म। Students, many low-grade iron ores have been discovered in Pakistan. These are found in Chalghazi, Kalabagh, Langriyal and Chitral. High-grade iron ore has been discovered at Nokandi in Balochistan. Students, पाकिस्तान में मामूली किस्म का लोहा वाफर मिक़दार में दरियाफ्त हुआ है, यानी पाकिस्तान में जो मामूली किस्म का लोहा है वो ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। ये चलगाजी, कालाबाग, लंगड़ियाल और चतराल के इलाकों में पाया जाता है, जबकि आला किस्म का लोहा बलोचिस्तान में नोकंडी के मकाम पर दरियाफ्त हुआ है। The fifth form of mineral resources is gypsum. Gypsum is found at Daud Khel, Khewda and Dandot. It is used in fertilizer and cement industries and in the manufacturing of plaster of Paris, manufacturing banana. Students, gypsum भी मादनियात में से एक है। जिप्सम दाऊद खेल, खेवड़ा और डंडोत के इलाकों में पाया जाता है। जिप्सम खाद और सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ में या कारखानों में
और प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, मार्बल या संगे मरमर। Write the meanings of difficult words. First, construction, तामीराती, various, मुख्तलिफ, locations, मकामात, export, बरामद, यानी पाकिस्तान जो अशिया या जो सब्सटेंसेस बाहर मुल्कों को बेचता है उसको एक्सपोर्ट या बरामद कहते हैं। मार्बल इज़ वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हाई ग्रेड मार्बल in various colors, white, green, brown and ash color is found at various locations. For example, Swat, Mardan, Naushehra and Malagori near Warsak in Khyber Pakhtunkhwa and Chennai in Balochistan have important deposits of marble. Mumad and Bajawar agencies also have important deposits of this mineral. Marble is also an important export of Pakistan. Students, संगमरमर या मार्बल ज़्यादातर तामीराती इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इमारतों के बनाने में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में आला किस्म का और मुख्तलिफ रंगों मसलन सफ़ेद, सब्ज़, भूरा और सलेटी रंग का संगमरमर मुख्तलिफ मकामात पर पाया जाता है, मसलन स्वात, मर्दान, नौशहरा और मुल्लागोरी वर्सक के नज़दीक, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में चेन्नई के मकाम पर पाया जाता है। मोहम्मद एजेंसी और बाजवड़ एजेंसी में भी मार्बल के ज़खायर मौजूद हैं। ये दोनों एजेंसीज खैबर पख्तूनख्वा में हैं। पाकिस्तान अब ज़्यादातर मार्बल बैरूनी मुल्क भी बरामद करता है। नंबर 7, कार्बोनेट या चूने का पत्थर। कार्बोनेट which is widely used in construction and in the cement and glass industries is found at many locations in Pakistan. Some of the important among these include Kohat, Margalla, Taxila, Ranipur, Harnai and Rohri. Students, कार्बोनेट या चूने का पत्थर ज़्यादातर तामीराती काम में और सीमेंट और शीशा साजी की सनतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी सीमेंट और शीशा साजी की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये तामीराती यानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, इमारतों के बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में चूने का पत्थर या कार्बोनेट बेशतर मकामात पर पाया जाता है, जिनमें कोहाट, मारगल्ला, टैक्सला, रानीपुर, हरनाई और रोहड़ी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। Student, number 8 form of mineral resources is chromite. Chromite is found abundantly throughout Pakistan. Abundantly बहुत ज़्यादा। Students, chromite पाकिस्तान में वाफर मिक़दार में पाया जाता है। Students, let's move to page number 75. Students, it is used in the iron and paint industries and in the manufacturing of photographic materials. The deposits of chromite are found at Muslimbagh, Chaghi and Kharan in Balochistan and at Charsadda and Malakand in Khyber Pakhtunkhwa. There are also important deposits of this mineral in the North Waziristan, FATA. Students, chromite ज़्यादातर फौलाद साजी, रंग साजी और फोटोग्राफी की सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमाइट के ज़खायर बलूचिस्तान में मुस्लिमबाग, चागी, खारान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में चारसदा, मलाकंड और कबायली इलाकाजात यानी फाटा शुमाली वजीरिस्तान में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फाटा या फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज वो इलाके हैं जो विफाकी हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। Number 9, salt. Khevda, Badr Khail and Jatta have vast deposits of salt. Salt is also obtained from sea water in the coastal areas of Balochistan. Sea water, समंदर का पानी. Coastal areas, साहली इलाके. Students, खेवड़ा, बहादुर खेल और जट्टा के मकामात पर नमक के बहुत बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, जबकि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में समंदर के पानी से भी नमक हासिल किया जाता है।
Students, number 10th is sulfur. Sulfur is widely used in chemical industries like the manufacture of explosive. Balochistan has vast deposits of sulfur ores. It is also found in Mardan and Jacobabad. There are factories for extracting sulfur from these ores in Quetta and Karachi. Write the difficult words and their meanings first. Explosives, बारूदी मवाद. Extracting, निकालना. Widely, बहुत ज्यादा. स्टूडेंट्स, गंधक या सल्फर गोला बारूद और कीमियावी सनतों में इस्तेमाल किया जाता है. ये बलूचिस्तान के अलावा मर्दान और जैकबाबाद के जिलों में भी पाया जाता है. इसको साफ करने के कारखाने क्वेटा और कराची में भी मौजूद हैं. And the last form is copper या तांबा. Sandak and Chaghi in Balochistan have important deposits of copper. Recently, vast deposits of this important mineral resource have been discovered at Rekordik, also in Balochistan. Apart from the manufacture of wire used in electrical appliances, copper is also widely used in the manufacture of household utensils in the minting of coins. Students, underline the difficult words and their meanings. Deposits, ज़ख़ायर. Appliances, बिजली के आलात. Household utensils, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन. Minting, ढालना. Coins, सिक्के. स्टूडेंट्स, तांबे की खानें बलूचिस्तान में सैंडक और चागी के मकामात पर हैं. हाल ही में बलूचिस्तान में रिकॉर्डिक के इलाके में तांबे के वसी ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए हैं. स्टूडेंट्स, तांबा बिजली के आलात में इस्तेमाल होने वाली तारों के अलावा घरेलू बर्तन और सिक्के ढालने यानी सिक्कों को शेप देने में भी इस्तेमाल होता है. स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट मिनरल रिसोर्सेज. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Let's move to another topic, that is the importance of agriculture in the economy. The importance of agriculture in the economy. मईशत में ज़राअत की अहमियत. Importance, अहमियत. Agriculture, ज़राअत. Economy, मईशत. Students, first of all, underline the difficult words and write down their meanings. Population, आबादी. Directly, बिलवास्ता. Indirectly, बिलावास्ता. Associated, मुंसलिक. Agriculture continues to be the most important sector of Pakistan economy because around 65% of the population is directly or indirectly associated with it. स्टूडेंट्स, ज़राअत या एग्रीकल्चर पाकिस्तानी लोगों का एक कदीम पेशा है. ज़राअत हमारी माइशत में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वी कैन से दैट एग्रीकल्चर हमारी माइशत या इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इसलिए कि हमारी आबादी के तकरीबन 65% लोग बिलवास्ता या बिला वास्ता ज़राअत से मुंसलिक हैं. स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 76. Apart from directly fulfilling the country's food needs, agriculture also facilitates livestock raising, which in turn contributes to meeting the country's food needs. In Pakistan, the agriculture sector contributes to the country product by 32% and to the foreign exchange by 45%. Underline the difficult words and write down their meanings. Livestock raising, हैवानाती वसाइल. नीड्स, ज़रूरतें. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मजमूई पैदावार. फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला यानी कौमी सरमाया या कौमी आमदनी. स्टूडेंट्स, ज़राअत या एग्रीकल्चर से हमारी खुराक की ज़रूरत पूरी होती है. ये जानवरों के लिए चारा फराहम करती है. मईशत में हैवानाती वसाइल की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता और हैवानाती वसाइल का इन्हिसार ज़राअत पर है. ज़राअत सनतों के लिए खाम माल मुहैया करती हैं
और ज़राअत पर मबनी सनतें या इंडस्ट्री माशी तरक्की या इकनॉमिक डेवलपमेंट या रोज़गार की फराहमी में भी और ट्रेड या तिजारत में भी अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार या मुल्की दौलत का 32% हिस्सा और ज़र मुबादला का 45% हिस्सा ज़राअत से हासिल होता है। Students, this is the end of part 2 chapter 3. We have discussed 2 topics in this part 2. Hope you understood these 2 topics. We will discuss our 4th topic in part 3. Till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe. Thank you.